میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں جس محبت کا آپ نے اظہار کیا، جو آپ نے شاندار استقبال کیا۔ الیکشن یاد آ گئے کیونکہ الیکشن میں بھی آپ ایسے ہی شاندار استقبال کرتے ہوتے تھے، تو پہلے اپنے لیے تالیاں بجائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں نے اور میرے بھائی اسد علی کھوکھر صاحب نے الیکشن میں جو وعدے کیے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی تکمیل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج جو یہاں پہ افتتاح کیے گئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور ریکارڈ ترقی یافتہ کاموں کا آپ سے وعدہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے دونوں بھائی خوشی غمی میں، اچھے برے وقتوں میں آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے الیکشن میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری خاطر آپ نکلے گھروں سے، آپ نے ووٹ ڈالے بھی، باقی لوگوں کو بھی نکالا ووٹ ڈالنے کے لیے، آپ نے ووٹوں کا پہرا بھی دیا، تو یہ ہم احسان بھولنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمیں لوگ جانتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم جس نے احسان کیا اس کا احسان ساری عمر یاد رکھتے ہیں، اور بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی ملک صاحب کے پچھلے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پیچھے جو نالا گزرتا ہے یہ کور ہونا شروع ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ توڑ آگے ڈرین تک جائے گا، اور یہ آپ کو علاقے کی تقدیر بدلتی ہوئی یہاں پہ نظر آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم دونوں بھائی آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ وعدوں کی تکمیل وہ شروع ہو چکی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں ہر روز رپورٹ ملتی ہے کہ جہاں پہ بھی گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کی تاروں کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، تو ان مسئلوں کے حل کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ جو افتتاح کیا ہے یہ کئی افتتاحوں میں سے پہلا افتتاح ہے، اور یہ وعدے کی تکمیل ہے، اور بندہ وہی ہوتا ہے جو زبان کا پکا اور اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پارٹی نے کال دی، جب بھی آپ کو پکارا گیا، آپ نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا، بہادری سے، دلیری سے۔ تو یہ شیروں کی پارٹی ہے، اور شیر دلیری کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی کے لیڈر بھی شیر ہیں، ہمارا نشان بھی شیر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ جو دلیری ہوتی ہے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہ جو ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے، جیسے جیسے مہنگائی میں کمی واقع ہو رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، جیسے جیسے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے دوست ممالک کی طرف سے ملک کے اندر ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اربوں ڈالر کی، یہ جو ریکارڈ سرمایہ کاری کی جا رہی ہے یہ اس دور میں کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ ان کو یقین ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے وہ عوام کا درد رکھتی ہے، اور نہ صرف عوام کا درد رکھتی ہے، عوام کے مسائل کو وہ سمجھتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے حکومت، اور پاکستان کے مسائل ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف کے دور میں حل ہوئے، اور اب بھی انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں میاں شہباز شریف کے دور میں یہ حل ہوں گے۔ اس پہ یقین ہے نا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو مہنگائی میں کمی ہے، جو زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہے، جو پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہے، جو پاکستان کی سرمایہ کاری میں اضافہ ہے، یہ
रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है वो कभी 1 लाख पॉइंट उसने क्रॉस नहीं किए थे। कभी इतनी तेजी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में नहीं आई थी। ये तारीख बनी है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज वो रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ती है। इसकी क्या वजह है मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इसलिए रोज बरोज रिकॉर्ड बन रहे हैं क्योंकि सरमायाकारों को, ताजरों को, दुकानदारों को, बिजनेस करने वालों को यह एतमाद है कि अब जो हुकूमत आई है वो मुल्क के साथ मुखलिस है। वो हुकूमत घड़ी चोरी में मुलविस नहीं, वो हुकूमत 190 मिलियन पाउंड की चोरी में मुलविस नहीं। जिसने चोरी की थी वो आज भुगत रहा है और फिर भी मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आता। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर किसने बनाया? एटमी धमाके किसने किए थे? एटमी धमाके इस मुल्क में किसने किए थे? हमेशा किसके दौर में मुल्क की मईशत तरक्की करती है और महंगाई नीचे जाती है? तो क्या अब जो महंगाई में कमी वाक़ई हो रही है और मुल्क की मईशत तरक्की कर रही है तो ये अल्लाह ताला का फजल है मुस्लिम लीग नून के ऊपर कि हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में अल्लाह ने नवाजा है हमें कि अवाम की मुश्किलात, अवाम के मसाइल हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में हल हुए हैं। और ये एक दौर था कि 32% महंगाई थी पिछले साल और इस साल वो 4% पे रह गई है। इससे भी इंशाअल्लाह ताला नीचे जाएगी। वो जो मुल्क दुश्मन जमात है जिसने अजान हो रही, 2 मिनट जरा हम वेट करते हैं। अवाम के दुख सुख में हमेशा साथ रहेंगे, इंतखाबात में किए गए वादे वफा करेंगे और हल्के में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल होंगे। पुरजोश इस्तकबाल और वालियाना मोहब्बत पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। मुल्क की माशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। महंगाई में कमी और बरामदात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल का जिक्र करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख की हद को अबूर किया है। अवाम की तरक्की और खुशहाली के सफ़र को जारी रखेंगे और माशी काम को यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ लाहौर में इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से किए गए वादों को मुस्लिम लीग नून भूलने वाली नहीं है। इलाके की तकदीर बदलने का ख्वाब पूरा कर रहे हैं। हमारे कारकुन भी शेर हैं और इंतखाबी निशान भी शेर है। हल्के में जारी रिकॉर्ड तरक्याती काम तकमील के मराहिल में है। मुल्क में तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून का तुरा इम्तियाज है। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह 32% से कम होकर 4% पर आ चुकी है और इंशाअल्लाह ये मजीद और कम होगी और अवामी मुश्किलात का भरपूर इदराक है। मसाइल जल्द हल किए जाएंगे। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अताउल्लाह तारड़ अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम से किए गए वादों को कभी नहीं भूलती। इलाके की तकदीर बदलने का ख्वाब अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। हमारे कारकुन भी शेर हैं और हमारा इंतखाबी निशान भी शेर है। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा हो रहा है। मुल्क की मईशत अब तरक्की की जानिब गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत अशारिये दिख रहे हैं और जहां तक बात है इस हल्के की तो हल्के में जारी रिकॉर्ड तरक्याती काम भी अब तकमील के मराहिल में है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तामीर और तरक्की हमेशा से मुस्लिम लीग नून के ही दौर में हुई है और अवामी मसाइल का हल भी मुस्लिम लीग नून ने ही हमेशा पेश किया है। मुल्क में महंगाई की शरह भी कम होकर 32% से 4% पर आ चुकी है और अब ये भी मज़ीद कम होती दिखाई देगी। उन्होंने कहा कि अवामी मुश्किलात का भरपूर इदराक है। मसाइल का जल्द हल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मुल्क की मईशत दिन ब दिन तरक्की कर रही है और पाकिस्तान की बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। मुल्क के माशी इस्तेहकाम के हवाले से तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं और सरमायाकारी का जिक्र करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तमाम लोग। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि अल्लाह ताला के फजल से तमाम मुश्किलात हल हो रही हैं और हल होंगी इंशाअल्लाह ताला। जब हम अगले इलेक्शन में आपके पास आएंगे तो मेरा और मेरे भाई असद अली खोखर का सर फखर से बुलंद होगा
और अल्लाह ताला के फजल से जो वादे आपसे किए गए उनकी तकमील के हवाले से इंशाअल्लाह ताला आप खुद आके हमें बताएंगे कि तमाम वादे जो किए गए थे वो अल्लाह के फजल से पूरे हुए हैं। और ये मुस्लिम लीग नून का हमेशा गढ़ रहा है। मुस्लिम लीग नून हमेशा यहाँ से कामयाब हुई है और अल्लाह ताला का ये फजल है कि जो मसाइल हल हो रहे हैं, आज एक बहुत बड़ा दिन है इस हवाले से कि जो मुल्क दुश्मन अनासिर थे जिन्होंने 9 मई के हमले किए, जिन्होंने मुल्क की दिफाई तंसीबात पे हमला किया, और इस मुल्क में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हम भी सियासी लोग हैं, हम भी इख्तलाफ करना जानते हैं कि जो इख्तलाफ होता है वो तहजीब व तमद्दन के दायरे के अंदर रह के होता है। सियासी जो इख्तलाफ होता है वो दलील के साथ होता है, बातचीत के साथ होता है। जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। और ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने दिफाई तंसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए। ये जो सियासी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले कभी शुहदा की बेहुरमती नहीं की गई थी, क्योंकि ये मुल्क पहले है और सियासत बाद में है। मगर बानी चेयरमैन पीटीआई जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली तशद्दुद की सियासत की, जिसने इस मुल्क में रिवायत डाली कि एक दूसरे को बर्दाश्त मत करो, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, तोड़ फोड़ जलाओ घेराव का रास्ता इख्तियार करो, सियासत में तकसीम डाली, नफरत डाली, और जो अपने करतूत थे वो आप लोगों के सामने हैं कि वो 190 मिलियन पाउंड का करप्शन केस हो, वो अरबों रुपए की घड़ियों की चोरी हो। एक तरफ करप्शन हो रही थी और दूसरी तरफ इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहे थे। IMF को कहते थे कि पाकिस्तान को इमदाद मत दो। तो ये क्या वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मईशत तरक्की कर रही है? क्या वजह है कि जो बाहर से तरसीलात आती हैं 8.8 अरब डॉलर पे हैं? क्या वजह है कि महंगाई जो 32% थी वो 4% पे है? क्या वजह है कि जो एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है? क्या वजह है कि शरह सूद नीचे जा रही है? क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गई और तेजी है उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान ने भरपूर मेहनत की, मगर ये मुमकिन नहीं था कि अगर सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर वो भी भरपूर काविशें ना करते, और जो दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया उसमें उनका भरपूर किरदार रहा है। तो ये जिन्होंने मुल्क दुश्मनी की और 9 मई के हमले किए, जो सियासी दहशतगर्द हैं, सियासत का लिबादा ओढ़ के जिन्होंने दहशतगर्दी की, आज वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। और ये बात वाज़ेह हो चुकी कि 9 मई जब शुहदा की बेहुरमती की गई, जिन्होंने खून बहा दिया अपना, जिन्होंने मुल्क की खातिर मुल्क पे जान वार दी, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दे गए, जो सरहदों पे के मुहाफिज थे, उनकी यादगारों को मस्मार करके तो तहरीक इंतशार ने क्या पैगाम दिया कि ये सियासी दहशतगर्द हैं। और इसका मास्टरमाइंड आज वाज़ेह हो गया कि 9 मई का मास्टरमाइंड बानी चेयरमैन पीटीआई था और मंसूबा साज इसके तमाम साथी थे। ये 25 लोगों को आज सजा हुई है। ये आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 9 मई का इंसाफ तलाश करते करते शुहदा के वर्सा और जो फौजी तंसीबात का जलाओ घिराव किया गया, उसमें जो लोग जख्मी हुए, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुल्क की साख को खराब किया गया, वो इंसाफ तलाश कर रहे थे। आज इंसाफ मिला है और इसमें कोई नहीं बचेगा। जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम किया, ये 25 लोगों के अलावा जितने मंसूबा साज और इसका मास्टरमाइंड है, वो इंशाअल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और ये कहते हैं कि जी अवाम में हमारी मकबूलियत आके देखो, कोट लखपत के इलाके में
यहाँ पे हमारे मतवाले बैठे हैं जो मुस्लिम लीग नून के शेर हैं, जिन्होंने इलेक्शन में ये साबित किया कि ये मुस्लिम लीग नून का किला था और किला है और इंशाल्लाह ताला हमेशा किला रहेगा। और हम ये जो मुल्क दुश्मनी है, ये जो मुल्क की दिफा को कमजोर करने की इनकी साजिश थी, 9 मई एक स्याह दिन था, एक सानिया था जो बानी चेयरमैन पीटीआई ने जिसकी प्लानिंग की और जिसका वो मास्टरमाइंड है। तो आज जो इंसाफ मिला, मुझे खुशी है कि मैं अपने लोगों के, अपने भाइयों के दरमियान मौजूद हूं इस खुशी के दिन पे, और इंशाल्लाह तहिया करते हो कि पाकिस्तान का हम दिफा करेंगे, पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के मफाद में जो फैसले उनके साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो मुल्क दुश्मन हैं, जो कभी IMF को खत लिखते हैं, जो बाहर बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं, जो बाहर बैठ के अपने सियासी मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं, इनको हम रिजेक्ट करते हैं। और इंशाल्लाह 9 मई के जब सारे मुजरिमान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिलकर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे। और आपके साथ जो वादे किए थे, हम इंशाल्लाह ताला आपके पास जब दोबारा हाजिर होंगे तो अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, जिस तरह मैंने कहा ये बारिश का पहला कतरा है, हमने तो कभी किसी तकाजे पे नहीं कहा, वो भी मान लिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद।